थैंक यू वेरी मच प्रेम. इट्स बीन सच अ प्लेजर कि हमेशा कैफे म्यूचुअल में आके कॉन्फ्लुएंस में टू मीट सो मेनी पीपल. ऑफ कोर्स इट वुड हैव बीन सच अ ग्रेट प्लेजर टू एक्चुअली फिजिकली मीट, बट मैं जानता हूँ कि पिछले 1.5-2 साल से द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस, एंड आई थिंक इट्स एन एडमिरेबल जॉब दैट प्रेम एंड हिज टीम आर डूइंग टू कीप the entire community together via this conference conference. आज हम थोड़ी सी बात करेंगे एक ऐसे आइडिया के बारे में जिसका टाइम अब आ गया है. एन आइडिया whose time has come. Very simply stated, many people have been asking me questions about, what should I do कि ये market इतना valuation बढ़ गए हैं, and is it going to come down? Should I take profit? Should I exit? And I keep telling them कि भैया, this is a new life. You will have to deal with rich valuations now for a very long time to come, because quantum of money floating around in the world markets is such that your opportunities are going to multiply. At the same time, there will be difficult choices to make. ऐसे टाइम में we should think about how to allocate clients' money in such a way that he is not exposed to only one risk. तो अगर आपको लगता है कि that currently the markets are overvalued and your client needs to take a different risk, then different risk categories exist across the world. ये बात जरूर है कि as investors, as advisors to investors, as their distributors, we have not necessarily looked at those opportunities closely. So I'm going to spend the next 10 minutes trying to visit some of these opportunities, which I call investing outside India. So क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए इंडिया के बाहर? First of all, like I said, risk diversification, which today is a very, very high need for many of us. But simple fact of life तो ये है, India is one of the smaller markets in the global context. Bigger markets or more efficient markets are somewhere else in the world. और इंडिया तो सिर्फ एक emerging market है, which gets somewhere between 2 and 10% of total allocation of any global investor. 10 तो बहुत कम लोग डालते हैं, 2 के नजदीक ज्यादा लोग होते हैं. जबकि 50% of the world's market weight lies in the US, then there is Europe, there is Japan, and there are other markets. India जो है ये emerging market bucket में है, जहाँ की लोग इसे exotic समझ के यहाँ पैसा डालते हैं. और इसमें हमारे साथ हैं चाइना, कोरिया, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ताइवान और तमाम सारे अदर मार्केट्स. To give you a quick flavor of that, अगर आप MSCI वर्ल्ड इंडेक्स को 2020 का ये इंडेक्स डेटा देखें, you will see 53% of the world index is US, 14.5% roughly is Europe without UK. UK is about 5.7%, Japan is 7.6%, emerging markets, that is 11.6%. Somewhere in that emerging market is India. मेरा एक्सपीरियंस है कि 2.5% इंडेक्स वेट, 2.5-3% उस 11.5% में इंडिया का रहता है. यानी अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप करीब 2.5 या 3 रुपए इंडिया में डालेंगे. अगर दुनिया के स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर्स जो कि बहुत पैसा बनाते हैं, अगर 2.5 या 3 रुपए अपना इंडिया में डालते हैं, तो हम लोग क्यों अपने सारे के सारे 100 रुपए सिर्फ इंडिया में डालते हैं? क्या सिर्फ इसीलिए दैट वी आर पेट्रियाटिक? But should we not think about the risk that we take on a singular market? जबकि आज वो रिस्क very clearly आपके सामने खड़ी है. So it is an opportunity that you should look at how to give your clients a wider canvas to choose. यानी कि ये देखिए कि US मार्केट में हाउसहोल्ड सेक्टर से इक्विटी एलोकेशन 25% से भी ज़्यादा हो गया है. दिस इज प्योर इक्विटी. अगर आप म्यूचुअल फंड एलोकेशन देखेंगे, दैट इज बियॉन्ड 67%. लेकिन पिछले 5 महीने में द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज कम इनटू द इक्विटी मार्केट्स ऑफ यूएस, which is $570 billion approximately, is the total money that came over last 12 years in the same US markets. Not surprisingly, SPX 500, जो कि US का broad market index है, has given about a 60% absolute return in last 3 years. और individual fund managers जो हैं, उनका return 30 to 40% भी रहा है. UK का जो FTSE index है, FTSE 100, that has given a return of over 45% over last 2 years. जापान का निक्के 225
जिसमें 225 स्टॉक्स हैं, हैज गिवन 80% एब्सोल्यूट रिटर्न, यानी कि सिमिलर रिटर्न एज निफ्टी. तो देयर आर मेनी मार्केट्स, लार्ज, मच मच लार्जर मार्केट्स इन इंडिया, जहां भी रिटर्न काफी अच्छा मिलता है. बट खास बात यह है कि अगर आप रोलिंग रिटर्न देखेंगे, यानी 5 ईयर रोलिंग रिटर्न, और ये है सेंसेक्स जो कि ब्लू लाइन है, एंड S&P 500 रुपी में कैलकुलेट किया हुआ S&P 500, ये ब्लू लाइन है. आप देखिए कितना काउंटर साइकिल है इसमें. जब भी सेंसेक्स बढ़ता है उस जमाने में, उस टाइम फ्रेम में S&P 500 नीचे रहता है, और जैसे जैसे सेंसेक्स थोड़ा थोड़ा नीचे आता रहता है, S&P 500 क्रॉस करके उससे बढ़ जाता है. सो क्लियरली ओवर अ लॉन्गर होराइजन, 5 ईयर रोलिंग रिटर्न, 10 ईयर रोलिंग रिटर्न देखिए तो बात एकदम साफ नजर आती है. व्हाट अ फैंटास्टिक counter cyclical proposition it is to invest only, let's say if you picked S&P 500 of USA. वो सेंसेक्स के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है ऑन अ 10 ईयर रोलिंग रिटर्न. सो इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, विच आई थिंक मेनी ऑफ योर इन्वेस्टर्स आर, there is no doubt in my mind that they should have some exposure from a cyclical, counter-cyclical point of view into the global markets. और एक पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव की बात करते हैं कि भाई, एक तो ये बात हुई कि आप काउंटर साइकिल रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से बाहर के मार्केट्स देखें, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, इंडिया में देयर आर मेनी बिजनेस पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन एक्सपोर्ट एंड फॉरेन रेवेन्यूज. यहाँ तक कि आईटी में तो इतने सारे लोग हैं हु आर एम्प्लॉयड एंड हु व्हेन दे वर्क आउटसाइड इंडिया गेट पेड इन फॉरेन करेंसीज. सो रेवेन्यू डिपेंडेंसी जो आपकी एक्सटर्नल मार्केट्स पे है, उसको अगर आपको हेज करना है, उसकी वैल्यू को फुल कैप्चर करना है, तो इट इज पॉसिबल दैट यू शुड टेक सम पार्ट ऑफ दैट रेवेन्यू विच इज यू आर गेटिंग आउटसाइड इंडिया, एंड उसमें से कुछ पोर्शन आप बाहर ही इन्वेस्ट करें, सो दैट यू गेट अ करेंसी हेज. यानी वो जो पैसा आपने बाहर कमाया है, अगर बाहर ही इन्वेस्ट करेंगे तो वो कभी भी रुपी के साथ डिप्रिशिएट नहीं होगा. या फिर सपोज यू हैव अ क्लाइंट कि उसे 5 साल में, 10 साल में, या 4-5 साल में अपने बच्चों को बाहर भेजना है पढ़ने के लिए. एंड ऐसे बहुत से लोग गए हैं जो कि नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया, इन यूएस, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बच्चों को बाहर भेजते हैं. उनका प्लान रहता है कि बच्चे बाहर जाएं. अगर आप उनके लिए सेविंग्स करना चाहते हैं, देन यू शुड मेक दैट सेविंग आइडियली इन अ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इन्वेस्टमेंट, जो कि बाहर इन्वेस्ट हो, अगेन सो दैट when you have to spend that money, it is indexed itself to a foreign currency and you are protected against your own currency's deterioration. क्योंकि ये साफ बात है कि 50 ईयर का ट्रेंड है कि इंडियन रुपी जो है यूएस डॉलर के अगेंस्ट, विच इज द मेन करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, 4 to 5% एनुअली डिटेरियोरेट होता है. इट लूजेस इट्स वैल्यू अबाउट 4 to 5% एनुअली. तो अगर आपको उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना है, या फिर यू हैव अ लार्ज गोल्ड होल्डिंग इन योर पोर्टफोलियो, क्योंकि गोल्ड और यूएस डॉलर जो है, ये साफ है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं. तो कई वजह हैं दैट फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव आल्सो, नॉट ओनली फ्रॉम रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, नॉट ओनली फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज, दैट यू शुड लुक एट इन्वेस्टिंग योर क्लाइंट्स मनी इन इंटरनेशनल मार्केट्स. और अगर देखें कि ये कितना हुआ है, हाउ मेनी पीपल हैव डन दिस, तो आरबीआई की एक स्कीम है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, LRS कहलाती है. उसके अंतर्गत $250,000 एवरी इंडियन कैन सेंड अब्रॉड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस. कुछ 200 रीजंस हैं उसमें, इंक्लूडिंग ट्रैवल, बाहर से आपको कोई छोटी सी चीज खरीदनी हो, बट दिस ऑल्सो इंक्लूड्स परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, यानी इन्वेस्टमेंट्स. इसके माध्यम से आज की तारीख में कुल मिलाकर 5,250 करोड़ अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्ट हुआ है बाय द इंडियंस इन्वेस्टिंग अब्रॉड. ये काफी छोटा अमाउंट है, $700 मिलियन. ये क्यों छोटा है? क्योंकि इस डायरेक्शन में जाने से, टू यूज दिस फैसिलिटी ऑफ आरबीआई, यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ पेपर वर्क टू बी डन. वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का पेपर वर्क आपका बैंक आपसे करवाता है. अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं, you have to find a broker who can do this for you.
यू हैव टू हैव इनफ रिसर्च एंड रिकमेंडेशंस कि भाई क्या खरीदा जाए, क्योंकि यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट में सुना तो बहुत है, लेकिन एग्जैक्टली व्हाट स्टॉक और व्हाट सिक्योरिटी टू बाय, व्हेन टू सेल, ये सब जो है अपने आप करना पड़ता है. तो क्लियरली देयर इज अ लॉट ऑफ cumbersome work to be done if you want to use LRS. Of course, now there are brokers who help you do that. But clearly, म्यूचुअल फंड के अगर रास्ते से जाएंगे, which is called fund of funds, global of और international fund of fund, वो बहुत सही तरीका है. It is very simple. Already 1 million Indians have invested through this. कुल मिला के आज की तारीख में 20,000 करोड़ इन्वेस्ट हो चुका है, और इसमें से 3,500 करोड़ तो सिर्फ पिछले 2-3 महीनों में ही आया है. कई सारे फंड हाउसेज ने ये लॉन्च किए हैं, आपने भी देखा होगा. आज की तारीख में 37 स्कीम्स हैं, उसमें से 5 करीब 6 महीने, पिछले 6 महीने में लॉन्च हुई थी, और अनदर 10 स्कीम्स आर बिफोर द रेगुलेटर फॉर अप्रूवल. और उसका एक खासियत यह है कि देयर इज अ $1 बिलियन लिमिट पर फंड हाउस, यानी 7,500 करोड़ के आसपास एवरी फंड हाउस कैन टेक money from Indians and invest outside India. This is outside of the LRS limit. जो RBI की liberalized remittance scheme है, ये over and above that scheme, this money can be invested. Individual level पे कोई limitation नहीं है, आप कितना भी पैसा चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं. Easy to do, and obviously fund managers will know where to invest, when to exit, what to buy, and how to make profit for you. इसमें देखिए तमाम सारे फंड्स हैं, एंड आई हैव जस्ट टेकन अ फ्यू 10 और 11. इफ यू से सी ईयर टू डेट रिटर्न, यू विल सी प्रीटी डिसेंट रिटर्न. मतलब इतना अच्छा रिटर्न इंडिया में भी ईयर टू डेट नहीं आया है इक्विटीज में. सो देयर आर मेनी फंड्स एंड देयर विल बी मेनी मोर टू कम, एंड आई एम वेरी श्योर दैट फ्रॉम आवर फंड हाउस वी विल कम टू यू विद समथिंग सूनर और लेटर. लेकिन एक और कैटेगरी है बाहर इन्वेस्ट करने की जो खास है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे. वो है रियल एस्टेट. वो कैसे इन्वेस्ट किया जाए? 50% ऑफ ऑल इंडियन हाउस होल्ड वेल्थ इज लॉक्ड इन रियल एस्टेट. ये आप भी जानते हैं. व्हेनेवर यू टॉक टू योर क्लाइंट्स दे विल टेल यू. और पिछले 3-4 महीनों में इस मार्केट में इंडिया में भी तेजी आई है. सो पीपल हैव बिगन टू लुक एट रियल एस्टेट अगेन. लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए इंडिया में, दिस इज अ 10-year ग्राफ प्रोवाइडेड बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक, कि रियल एस्टेट प्राइस इंडेक्स जो कि 2011 में 76 पे था, 114 पे गया मैक्सिमम अराउंड द एंड ऑफ 2019 और मिडल ऑफ 2019, यानी कि अबाउट 50-55% रिटर्न मिला उसमें. उसके बाद से नीचे ही आता जा रहा है. अगर आप 10 साल का रिटर्न देखेंगे, यू आर सिटिंग एट अबाउट 35-40% टोटल कैपिटल रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ 10 years, विच इज नॉट वेरी नाइस कंपेयर टू इक्विटीज. और उसमें और प्रॉब्लम्स हैं, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है. तमाम सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा जब डाला था 2010, 11, 12 में, वो अटक गया था तमाम. फॉर अ लॉन्ग टाइम मैनी पीपल हैव एक्चुअली गॉटन आउट विद अ लॉस. और अगर इंडेक्स करेंगे और इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे तो डेफिनेटली लॉस है. बिसाइड्स लैक ऑफ चॉइसेस होती हैं. इंडिविजुअल लेवल पे इंडियंस आर नॉट एबल टू कंफर्टेबली इन्वेस्ट इन कमर्शियल रियल एस्टेट फॉर एग्जाम्पल, या ऑफिस रियल एस्टेट या मॉल्स. उस तरह की रियल एस्टेट आप अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते हैं, ये मुश्किल होता है. वेयर एज इफ यू लुक एट द यूएस मार्केट, एंड आई जस्ट पिक्ड वन मार्केट, 10 years में this market has given a 329% total return from real estate. That is through a Vanguard real estate ETF. So you can imagine the difference that you can get by investing in a more efficient real estate market, which is large, liquid and efficient. इतना बड़ा रिटर्न का डिफरेंस होता है. सो क्वेश्चन कम्स कि हम फिजिकल खरीदें या रीट खरीदें. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज अ रीट. फिजिकल में तमाम सारी प्रॉब्लम होती हैं जिसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं उसके बारे में. लेकिन रीट्स में है क्या, एक खासियत है, 90% ऑफ द मनी ऑफ द रीट्स हैज टू बी इन्वेस्टेड इन इनकम यील्डिंग, यानी कि रेंट यील्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कमर्शियल टाइप. तो ऐसा समझिए, buying into a REIT is like investing in a already rented piece of real estate. उसमें से आपको रेंट इनकम मिलने ही वाली है. और you can sell your position on the stock exchange whenever you need cash. It's a very liquid market. और जितना भी पैसा REIT कमाता है through various incomes that it gets, which is basically sometimes it gets dividends, sometimes it gets rents,
कुछ कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलता है उनको, क्योंकि 10% जो वो प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं, बट 90% ऑफ द मनी द रीट कलेक्ट्स हैज टू बी पेड आउट टू द इन्वेस्टर्स. अगर इंडियन रीट्स की तरफ नजर डालेंगे तो यू विल फाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% रिटर्न मिला है पिछले 1-1.5 साल में, बिकॉज रीट्स आर वेरी न्यू इन इंडिया. सिर्फ 3 लिस्टेड रीट्स अवेलेबल हैं एंड दे आर ऑल अबाउट लेस देन अ ईयर, अबाउट ईयर एंड हाफ ओल्ड, उससे कम भी है. तो ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक बना नहीं है, हालांकि इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है. इट्स अ कन्वीनियंट वे टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट. खास बात मैं आपसे करूंगा, यूएस की तरफ बहुत दूर है, एशिया पैसिफिक में. एशिया पैसिफिक में रीट्स हैव एग्जिस्टेड फॉर ऑलमोस्ट 15 years नाउ. तमाम सारे रीट्स हैं इन हांगकांग, सिंगापुर, इन थाईलैंड, इन ऑस्ट्रेलिया, इन मलेशिया, इन सब जगह तमाम सारे रीट्स हैं. एंड इफ यू लुक एट देयर इन्वेस्टमेंट रिटर्न over the last 3 years, you will see that Asia Pacific REITs in Indian rupee value terms outperform clearly the Indian market. They don't outperform the US market, but it's a very, very healthy return that they give from a very liquid market. So सोचिए इस बारे में. I don't have any more slides to present. Please think about participating for your customers in the world के लार्जेस्ट मार्केट में, काउंटर साइक्लिंग, डाइवर्सिफिकेशन, करेंसी हेज, बेटर एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, इसके बारे में खास सोचिए. टॉक टू ऑल द फंड मैनेजर्स एंड इंक्लूडिंग अस कि क्या हो सकता है इसमें अपने क्लब के क्लाइंट्स के लिए. आई विल स्टॉप देयर एंड बैक टू यू प्रेम. Hi, Ashutosh. That was a very good presentation. You made out a very cogent case for REITs. I have just one simple question to ask you. If I wanted to participate in any of these REITs overseas, are there any products available in India? So, Prem, so far only one fund house has created a product, and that is Kotak. Okay. But I'm happy to tell you, since you asked, that in this coming months, we ourselves will be launching an Asia Pacific REITs fund, which is managed by our partner Manulife for a reasonable period of time. So there will be more and more opportunities coming up for investors to look at this. So, and this is only Asia Pacific, not US? Only Asia Pacific, because it's a very unique market. Okay. The characteristic of the market is that it has many, many office real estate. And as you can imagine, in the lockdown, the values had come down. And as the Asia Pacific market is opening up, the REITs are collecting rents on a very high basis, and the capital values are also coming in very well. So it's a great timing to actually start investing in that kind of an opportunity. Okay, Ashutosh, thank you so much for being with us. Really appreciate taking out time and making this very brilliant presentation. Thank you.